चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। And the viewers, today evening the Prime Minister Modi is going to be in Varanasi, his home turf. He has many engagements the entire evening. During his visit, he will be releasing the 17th installment of the PM Kisan scheme, amounting to rupees 20,000 crore, benefiting 9.26 crore farmers. Not only that, Modi will be awarding certificates to more than 30,000 members of self-help groups who have been trained as Krishi Sakhis. These individuals will serve as para-extension workers, assisting fellow farmers, agricultural practices. So these are the top updates coming in right now on Republic TV viewers. PM Modi will be in Varanasi and he has a lot lined up, back-to-back engagements lined up today itself. We showed you visuals a short while back of the preparations underway, grand preparations underway ahead of PM Modi in Varanasi, and this is going to be the first time after being re-elected as the Prime Minister for the third consecutive term that PM Modi will be visiting his parliamentary constituency. And like we just told you, PM Modi will be having many engagements the entire day today. For example, it's going to be a very important 17th installment of the PM Kisan scheme. That is going to be a very important part of the visit. He will participate in the Kisan Samman Sammelan, and he will also offer prayers at the Kashi Vishwanath temple, and he will also participate in the Ganga Arati. He has spent the night in Varanasi today. It's going to be a very important visit, and then will be departing for Bihar tomorrow. The event is very important. We can expect that Anandiben Patel, the governor of Uttar Pradesh, Chief Minister Yogi Adityanath, Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan, and many other ministers would be present. The farmers event is very important. Farmers will be educated about good agricultural practices, emerging technologies in the agriculture sector, and other important programs. Let's go ahead to my colleague who's joining us. My colleague from Republic Bharat, Vaibhav, is joining us live from Varanasi. A very good afternoon to you, Vaibhav. What is happening where you are? And we know that grand preparations are underway ahead of PM Modi's visit in the evening. देखिए, बिल्कुल हम इस वक्त उसी स्थान पर मौजूद हैं जहां पर अब से तकरीबन 2 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। एक बार मेरे विजय उमेश आपको तस्वीर दिखाएंगे। यहां पर आप देखिएगा मंच पर तमाम तैयारियां हो चुकी हैं और आज सबसे महत्वपूर्ण ये है क्योंकि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ के बाद नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं और शुरुआत किसानों के उत्थान से की जाएगी क्योंकि किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जो है वो आज प्रधानमंत्री यहीं से जारी करने वाले हैं। ये तमाम स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं जो इस कार्यक्रम में पहुंच रही हैं। दीदी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, तब में और अब में महिलाओं के सशक्तिकरण में क्या बदलाव आपने देखे हैं? पहले से तो बहुत बदलाव हो गया है सर। पहले जो है कि अपना 100 रुपये बचत, 20-20 रुपये औसत बचत तक नहीं कर पा रही थी, कहीं पैसा नहीं रहता था। जब से महिला जुड़ गई हैं स्वयं सहायता समूह में, अपना 20-20 रुपये हफ्ता जमा करती हैं, 80 रुपये महीने हो जाता है, किसी महीने में 100 हो गया तो 12-5-60, वैसे तो 5-6 हज़ार 5 साल में उनका हो जाएगा ना, तो वो बचत भी हो जाएगा और लोन घुमाती हैं तो अपना 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से लोन भी बांटती है महिलाओं को, तो उसमें ब्याज बढ़ता है। जब टूटेगा तो सारे महिलाओं को बांटा जाएगा बराबर करके। दीदी, आपसे मैं बात करना चाहूँगा, पहले जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके लिए बड़ी चुनौती ये थी कि उनके पास रोजगार के कोई अवसर नहीं थे। अब क्या बदलाव आप देखते हैं? पहले के लोग घर से बाहर किसी को जाने नहीं देते थे। इसका कारण है कि मोदी जी ने महिलाओं को बहुत मान्यता दिया कि पहले महिला फिर बाद में पुरुष, तो इसी वजह से महिला कुछ आगे बढ़ने की कोशिश की और अपने घर परिवार रोजगार हर चीज़ में आगे बढ़ने का मोदी जी ने मौका दिया।
तो देखिए ये उस मौके की बात कर रही हैं जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मौके मिले हैं। कुछ लोग और हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। किसानों के सम्मान में आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, 17वीं किस्त जारी होगी। ये कितना मजबूत है किसानों के लिए इस देश की? आत्म भारत बनने जा रहा है और तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज मेहदीगंज में उनका आगमन है। उनके स्वागत में हमारे आज तमाम देखिए समूह की महिलाएं, बहनें और भाई सभी लोग उपस्थित हैं यहाँ। और आपने देखा कि 2014 के पहले जो सरकार थी, आज उससे और अब के सरकार में जो परिवर्तन है, आज उनसे सब लाभार्थी भी हैं, सब खुश भी हैं। विपक्ष थोड़ा सा बीच में जो सपा बसपा कांग्रेस के लोग तमाम जो संविधान को लेके तमाम टिप्पणियां की, इसमें गुमराह करके अभी खटाखट जो आपके सामने बोल रहे थे। खटाखट और फटाफट जो पैसे देने की बात कही गई थी वो लोगों के जहन में अभी भी जिंदा है। बैक टू स्टूडियो।